So let me tell you about a interesting concept that's prevailing in the market these days. Work wife. ओह, अब जब आप शादियों में जाते हो तो सगन के साथ दूल्हा दुल्हन को क्या एडवाइस देते हो? क्या लड़ाई बहुत बढ़ गई and then they both ended up parting ways. Okay. अलग हो गए. Ab now the cases are being filed. Wife does not want to stay with her husband saying that he is stopping me from spending money. ये फेमिनिज्म की आड़ में लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में जस्टिस पाने के लिए रिश्वत की जरूरत पड़ती है, या फिर मैं आपसे कहूं कि एक फोन कॉल लड़की का पूरे खानदान को जेल पहुंचा सकता है, आप ये भी सोचते होंगे कि रेपिस्ट और मर्डर को डिफेंड करके एडवोकेट्स को रात को चैन की नींद कैसे आती है? आइए, लेट्स मीट एडवोकेट आरजू खट्टर. Hi Arzu, how are you? Hi, I'm good. How are you? Great, great. It's such an honor that you're here sitting with us today. And I've heard such great things about you. तो हमारी फील्ड तो सिमिलर है, बट पाथ हर किसी के डिफरेंट रहते हैं. तो मैं चाहती थी कि हमारे व्यूअर्स तक भी आपकी थोड़ी सी जर्नी पहुंचे. प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट यू. First things first, thank you so much for inviting me here. It's an honor for me to be here on this show. So, about me, I am practicing as a lawyer primarily in the Delhi High Court in the civil, commercial, and matrimonial matters. I'm also a mediator with the Delhi High Court Legal Service Committee. My primary practice is of arbitration and commercial litigation. Great. I take care of various disputes and conflicts, and I help the parties to solve their conflicts amicably. I promote dispute resolution because, of course, what would society be if we stay in a disputed society? Exactly. And I think this is a very good topic to search on for the, for the students out there, because 5 years का law होता है या 3 years का law होता है. The specialization depends upon the child, right? Indeed. Yeah, so like we get to know a lot of things in those 5 years journey or 3 years journey, but it depends upon us कि हमारा किस में interest जगता है. So how is it, like how is it different from your school of law to the courtrooms? I would say that it was completely 360-degree transformation for me. Did you find the real moot court there? Not really. Not really. So in moot courts, what we see is a complete opposite of what the courts are there in reality. Yeah. It's just a mock court. और टीचर भी तो जज ही होती है ना वहां पे जो बैठी रहती हैं. Exactly. So this was one of your favorite teachers sitting on the judge's chair saying, okay, fine, I've passed you. Don't say anything. कोई अपना argument मत सुनाओ, कुछ मत करो. But you cannot do that in the real courts. Indeed. In real courts, we talk about the real law, the real people are involved. The stakes are very high. Whereas in the moot courts, so again, I've been to a lot of moot courts where I'm judging the competitions, where the students are putting their best foot forward. So I was recently a part of one of the moot courts, wherein the child, he was so nervous. Like, I wanted to applaud that child's effort, that he came out of his comfort zone and tried his best. Of course, that was not up to the mark. I couldn't do anything about it. But honestly, it takes a lot of effort to come out of the comfort zone and talk about things. Yeah. And in fact, recently I went to Presidium School. It was lovely. The students were lovely, and in my school time, there was no moot court or legal practices that were happening or the activities that were happening. But in Presidium, I saw this, that there was a mock moot जिसमें बच्चे अपने अपने कुछ cases थे. It was a fake case, obviously. So it was so brilliant. उनको लग रहा था कि it's that Netflix documentary चल रही है, हमें ऐसे ऐसे करके बोले. मैं कहा ऐसा नहीं होता. Just I was explaining them, I was giving them point, and exactly whatever you're saying, it's just clicking me. And there was a lot of people were nervous, students were nervous, but they were trying their best to give out whatever they can. So yeah, okay. So let's talk about one of your interesting case regarding your specialization field. Which field of domain do you want to talk about? Any that you like. You want the viewers to get attracted to that thing.
So let me tell you about a interesting concept that's prevailing in the market these days. Work wife. Oh, and that is what? So basically, people these days, they are very occupied and busy at work. Hmm. घर जाने का टाइम ही नहीं मिलता. तो अब जब इतना ही busy schedule है, people start looking for managing their emotional needs outside their homes. At the workplace, the relationships are being there. घर जा रहे हैं सिर्फ सोने के लिए, या फिर अपना आगे if you're traveling for work, या फिर some other thing is there extensively. But you're not there for your spouses. इमोशनल नीड्स नहीं है, इमोशनल नीड्स नहीं है, इमोशनल exactly. फुलफिलमेंट नहीं है. इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए अब सारी चीजों को मैनेज करना है. तो अब मोस्टली आप घर पे ही नहीं हो, आप ऑफिस में हो, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं. अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? डिवोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं. Because of those extramarital affairs. Right. So let me tell you about a case that I was recently working on. The husband, he's a CEO of a good multinational company. He's into the medical sector. Okay. The wife, she's also working, but she's not at the same level as that of the husband. अब क्या हो रहा है? Both of them, they are very much involved at their workplace. घर आ रहे हैं, टाइम ही नहीं है एक दूसरे के लिए. The child is there, about 7.5 years old child. अभी छोटा है. अभी बहुत छोटा है. Exactly. अब इसमें मेजर कंसर्न क्या आ रहा है? Now they both want to part ways. Why? Because there is a woman involved. Okay. So चल गया चक्कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. वर्क वाइफ्स क्या हैं? काम पे ही रहते रहते आपको घर की आने की ही जरूरत नहीं है. शी इज टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशनल नीड्स. द हस्बैंड वांट्स टू पार्ट वेज. इज लाइक ओके, आई डोंट केयर व्हाटएवर यू डू. बट देन नाउ द वाइफ डजंट वांट टू पार्ट वेज. Wife wants to stay. At any cost, she'll make an effort to make the relationship work. Why? Because there is a child involved. Yeah. There are very few women who take up the stand and part ways for the betterment Which of is the very child. difficult. Exactly. Being a woman, we can understand. It's very difficult कि you know, बच्चा छोटा है. I need to work. I need to take care of my child. साथ में फैमिली और भी डिजायर्स आपके होते हैं कि you know, एक फैमिली में एक अच्छा घर हो, हस्बैंड हो. He is not spending time with you. So I think for a woman it's very difficult. It is difficult, yes, but at the same time, things should not go at the cost of your self-respect, is my opinion. Yeah, true. Let me tell you about another case that was also involving the office politics and office relationships, workplace romance. So in this, what happened? The wife was involved in an extramarital affair. Thereafter, the husband, he being a very nice and generous person, wanted to stay with the wife. So it is both ways. It is both ways. Let's quote this. Let's give another name. Work wives भी हो गया और work husband भी हो गया. So आपकी साइकोलॉजिकली आपकी जो बेसिक इमोशनल नीड्स को फुलफिलमेंट करते हैं, आजकल सोसाइटी में ये टर्म्स बहुत, इसका मतलब यू नो वायरल हो रहे हैं कि नो नीड टू गो होम एंड गेट योर emotional needs when you can get it in your workplace or somewhere. So I think people are more going into this direction, right? चलो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सा केस बताती हूँ that I was recently working on. Wife, she was working somewhere. Husband, he was into the business. Okay. He had recently started the business and their marriage was like very recent. Okay. Almost 8 साल हो गए थे इनकी शादी को. 8 सालों के अंदर इन्होंने जैसे मर्जी अपना सब कुछ मैनेज किया, सब कुछ ठीक चल रहा था. इनिशियली तो सबका ठीक ही चलता है. Subsequently, exactly, honeymoon phase. सब सही चल रहा था. Subsequently, what happened? The wife, she started spending extravagantly. फिजूल खर्चे करने लग गई थी. अब हस्बैंड को इस चीज से प्रॉब्लम होने लगी. As a result of which इनके झगड़े बढ़ने लगे. बहुत ही जायज सी चीज है. अब झगड़े बढ़ेंगे तो घर पे बच्चा भी था ऑलरेडी साथ में. अब लड़ाई झगड़े में सबसे ज्यादा बच्चे ही इफेक्ट होते हैं. Exactly.
उनकी मेंटल लेवल थोड़ा हिट कर जाती है, पेरेंट्स आर एग्जैक्टली फाइटिंग। एग्जैक्टली। अब वाइफ को ये चीजें बुरी लगने लगी, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, वो एक दूसरे के पेरेंट्स पे पहुंच गई फाइट। तुम्हारे माँ बाप ने ये कहा, तुम्हारे माँ बाप ने ये कहा। और ड्रैग कर ही लेते हैं। एग्जैक्टली। अब पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए। हुआ क्या, लड़ाई बहुत बढ़ गई एंड देन दे बोथ एंडेड अप पार्टिंग वेज, ओके। अलग हो गए। अब नाउ द केसेस आर बीइंग फाइल्ड। वाइफ डज नॉट वांट टू स्टे with the husband saying that he is stopping me from spending money, but he's just stopping to spend extravagantly. एग्जैक्टली, कि मतलब फालतू खर्चे मत करो। हाँ, ठीक है, Exactly. मेक सेंस। And now the wife is filing false cases against the husband. So many cases are being there. Cross litigation is going on across the courts गॉड। in different jurisdictions. Let me clarify that. Not just one. हम्म। बहुत सारे अलग अलग जगह पर। अब बच्चे से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। The child is very attached to the father, but फिर भी नहीं मिल पा रहे। That's but natural. But do you think कि ये जो false allegation है, जो यूजली हम, मतलब एक विक्टिम है तो हम उसको कहते हैं कि एलिगेशन लगा रहा है कि इसके साथ गलत हुआ है, इसने बोला। But this is my point of view and I want to know yours also, because आप इस फील्ड में हो, कि ये फेमिनिज्म की आड़ में लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं। I second that. Actually, मैं खुद ये बहुत ज्यादा I would say परेशान हूँ जब मैं ये केसेस देखती हूँ। तो whenever I'm representing the husbands in the matters, I end up saying that the women, they are misusing the law that is meant to protect them. एग्जैक्टली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी किसी ने बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ तो नहीं किया। Exactly. मी टू आया था, वो भी अगेंस्ट ऑल द बॉयज थे, राइट। और मुझे से मतलब दिस इज बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें औरतें बोलती हैं कि हमारे हस्बैंड्स ने ऐसा कर दिया, लड़के की फैमिली ने ऐसा कर दिया, लड़का गलत था, ये गलत था। बट काफी आई थिंक फॉल्स एंड फेक थिंग्स काफी फ्लोट कर रही है मार्केट बहुत में। ज्यादा है, क्योंकि अब सबको पता चल गया है ना कि दिस इज हाउ आई कैन टेक इट फॉरवर्ड। हाँ, मैं कोर्ट में जाऊंगी तो मुझे रिलीफ मिल ही जाएगा, नहीं तो पैसा मिल नहीं जाएगा। तो पैसा मिल जाएगा, एलिमनी मिल जाएगी, मेंटेनेंस मिल जाएगी। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि क्या हस्बैंड विल ऑल्सो नॉट वांट ना कि उसकी फैमिली इस सब के अंदर ड्रैग हो। वो तो जब कहेगा कि जान छूटे। इफ एग्जैक्टली यू वांट टू टेक मनी और इस केस को ओवर जस्ट अप कर क्लोज, दो। दैट्स इट। So I think with this only, let's have a conversation over the concept of alimony and maintenance. What do you think about it? पहले जब शादी हो रही है तो द गर्ल्स फैमिली इज गिविंग गिफ्ट्स एंड कैश, द बॉयज फैमिली इज एक्सेप्टिंग इट। Yeah. डाउरी जिसे बोलते हैं, बैंड है इंडिया में, बट फिर भी लोग देते हैं। लड़की वाले अगर नहीं देंगे तो लड़के वालों को बुरा लगेगा, लड़के वाले Exactly. और वो आज तक आई थिंक चलता आ ही रहा है। एग्जैक्टली और अगर लड़के वाले मना भी कर दें कि हमें नहीं चाहिए, तो लड़की तब वालों भी का दे। आजकल क्या चलता है जी, हमारी नाक कट जाएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोशल टैबू दैट इज इन्वॉल्व विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इन इंडिया। देना तो है ही, हम जबरदस्ती देंगे, वो कैसे नहीं लेंगे? आइडियली तो नहीं होना चाहिए, लॉ प्रोहिबिट करता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसमें देना और लेना दोनों ही इज नॉट अलाउड, इट्स पर अभी अगेंस्ट द लॉ। एग्जैक्टली, पर आई थिंक सेरेमनी के नाम पे या किसी ना किसी चीज के नाम पे स्टिल इट इज हैपनिंग। इट इज हैपनिंग, यस। बहुत लोगों के जो आगे जाते हैं शादियां टूटने का रीजन क्या है कि मेरी पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया था, नाउ आई वांट दैट एलिमनी। आइडियली डाउरी इसीलिए ही नहीं दी जाती थी कि किसी के भी ऊपर एक प्रेशर नहीं क्रिएट हो। अब in the garb of alimony, the women, they are actually asking for like crores of money for the reason that they want to be separated. ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। पहले ही मत लगाओ ना, it should be mutual। पर फिर सोसाइटी क्या कहेगी? अब सोसाइटी तो बहुत कुछ कहती है, आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी सोसाइटी कहेगी। आई थिंक अक्सर लोगों के घर इसी वजह से टूट जाते हैं कि नहीं, सोसाइटी क्या कहेगी। एग्जैक्टली। और माँ बाप की चीजें हैं, माँ बाप क्या कहेंगे। बिल्कुल। और माँ बाप को होता है हमारी इज्जत है, इधर इट्स दिस वे और दैट वे। एग्जैक्टली। और जब एक लड़की मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तब कोर्ट्स में क्या होता है?
खाली लड़की नहीं केस फाइल कर सकती, उसके अलावा जो भी इंसान अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, लॉ में ये प्रोविजन है कि वो जाकर के कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं. यू हैव टू फाइल द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली कि हम नहीं मेंटेन कर पा रहे अपने आप को, सो वी वांट द मेंटेनेंस. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या होता है कोर्ट में, आप मेंटेनेंस पिटिशन फाइल करते हो, which was previously done under section 125 of the CRPC. Now it has changed to 144 of the BNSS. आपने केस फाइल किया, फर्स्ट डेट पर जो है मैटर लिस्ट होगा, नोटिस जाएगा टू द ऑपोजिट पार्टी जिससे भी आप मेंटेनेंस सीख कर रहे हो. अगर वाइफ फाइल कर रही है तो वो हस्बैंड के उसमें जाएगा. हस्बैंड आएगा फर्स्ट डेट पे रिप्लाई फाइल करने के लिए, या लेकर के आएंगे रिप्लाई, गिवन द सिनेरियो जो कुछ भी है. अब प्रैक्टिकली क्या होता है कोर्ट्स के अंदर, कोर्ट्स फर्स्ट डेट पर ही एड इंटरिम मेंटेनेंस बांध देते हैं. एड इंटरिम मेंटेनेंस मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस जो भी पैसे हैं, अब लड़की शी इज सेइंग दैट शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तो कुछ उसको जो कोर्ट को जो भी एक एक्स अमाउंट डिसेंट लगता है उसको कोट करते, उसको कोर्ट मेंटेनेंस के नाम पर कंपल्सरी कर देती है कि हस्बैंड हैज टू पे दैट अमाउंट. एड इंटरिम मेंटेनेंस which means during the pendency of the case, husband has to pay that amount. Okay. अब वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, इनकम एफिडेविट जाता है ऑफ द वाइफ एंड ऑफ द हस्बैंड. इनकम एफिडेविट पूरा एक डिटेल्ड फॉर्मेट है. दिल्ली की कोर्ट्स में रजनीश वर्सेस नेहा का एक फॉर्मेट चलता है जिसमें प्रॉपर डिटेल्ड एसेट्स जाते हैं, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स जाती हैं 3 साल की, ITR की स्टेटमेंट्स जाती हैं at the time of filing of the suit, 1 year prior to the separation and before the marriage. ये सारी चीजें डिटेल जाती हैं. बट कोर्ट्स क्या कर रही हैं आज की डेट में, फर्स्ट डेट पर ही ओरली सवाल पूछ लिया, हाँ जी कितना दे सकते हैं आप, और उतना बांध दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरा ये मानना है कि जजेस को प्रॉपर, जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है, जजमेंट के अंदर फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तभी हम उस बेसिस पे अमाउंट दे पाएंगे. कोर्ट ने यूजुअली क्या फैक्टर्स होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू यू क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पे एक औरत अपने मेंटेनेंस मांग सकती है, that she is not, कीपिंग इन माइंड शी हैज अ चाइल्ड और नॉट. so जब वाइफ शी इज नॉट एबल टू मेंटेन herself, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, she is not earning, a lot of times what happens is वाइफ के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं बट शी इज चूजिंग नॉट टू अर्न. तो कोर्ट्स ने इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर जजमेंट्स दे रखी हैं दैट इफ यू आर अर्निंग वेल then there is no reason that you cannot work Maintain hard your own self. and maintain your own self. This is the primary reason that is considered by the courts while granting the maintenance. अब ad interim तो उन्होंने बांध दी. अब पूछना तो चाहिए था, बिना पूछे, बिना फैक्टर्स को कंसिडर करे जो पूरा लॉ लेड डाउन है, इनकम एफिडेविट जाता है, इनकम एफिडेविट आपने बिना पढ़े एड इंटरिम आपने अगर फिक्स कर दी, दैट इज ऑल्सो नॉट इन द फेवर ऑफ लॉ. ऑब्वियसली जजेस के पास ये डिस्क्रिशन होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस एंड इन सब चीजों को लेकर के अब वो पास कर देते हैं. अमाउंट कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, अगर 5,000 10,000 अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, छोटा ही अमाउंट है बट कईयों के लिए बहुत ज्यादा होता है. कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स, फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स बिल्कुल, ऐसे होते बहुत हैं सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें द हस्बैंड इज आल्सो नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हिज ओन एक्सपेंसेस. उस केस में अगर कोर्ट बिना सुने, बिना समझे, बिना मेरिट्स में जाए, एडवोकेट की बात सुने बिना ही अगर कोर्ट अगर ऐसा अमाउंट कोर्ट दे रही है, डायरेक्शंस दे रही है दैट आपको ये अमाउंट पे करना है, सो दैट विल ऑब्वियसली बी गोइंग टू कॉज अ ग्रेव कंसर्न टू द हस्बैंड. एग्जैक्टली. तो इन सिचुएशंस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट डेट पर प्राइमरीली एडवोकेट को अपीयर होना चाहिए. जा करके वो मेंशन करेगा या करेगी कि क्या होना है, दैट वी नीड टाइम टू फाइल अ प्रॉपर डिटेल रिप्लाई. इनकम एफिडेविट भी हम फाइल करेंगे and let the proper documents come on record and Okay, so thereafter. sorry I'm cutting you here. इनकम एफिडेविट हम जब
देते हैं, तो काफी व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन निकल के आएगा, सो आई वांट कि डायरेक्टली आप उनको ये सब चीजें बता पाओ. इज इट कि हमें हस्बैंड ही एक उस वाइफ को अपना जो हस्बैंड है जिससे वो डिवोर्स ले रही है वही एलिमनी पे अप करेंगे, या अगर उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं है तो उसके फादर, उसकी मदर ये भी पे कर सकते हैं? Alimony and maintenance are both separate things. Alimony is usually one time amount. Section 24 of the Hindu Marriage Act talks about alimony. Maintenance is the amount जो आप अपने आप को monthly maintain करने के लिए आपको चाहिए. पर क्या वो भी उनके पेरेंट्स No, दे सकते हैं? no, they cannot. It only depends upon the But then again, husband. if there happens to be a situation wherein clearly साफ पता चल रहा है that dispossess कर दिया, उसने सारे funds को root कर दिया, so that is the moment, उस point of time पे court can intervene and can say कि आपको payment करनी पड़ेगी. और वो कैसे केसेस में होता है? बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स जा रही हैं, सब कुछ, everything is very much apparently visible. There is nothing that can be stopped. And if the boy is not working? The boy is not working, तो obviously कुछ तो कर ही रहा होगा. For example, father's business, or probably doing something or the other in family things. तो उसकी इनकम क्या है is to be considered. कुछ ना कुछ तो अमाउंट है ना that he is drawing. उसकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी आईटीआर से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो इनकम एफिडेविट जा रहा है जिसके अंदर प्रॉपर डिटेल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों जा रही हैं, नॉट जस्ट द एसेट्स. इफ द बॉय हैज सम लाइबिलिटीज ऑन टू हिमसेल्फ, तो वो भी उसको डिफाइन करनी होगी कि ये लोन ले रखा है, ये मॉर्गेज है, ये चीजें हैं. एवरीथिंग हैज टू बी स्पेसिफाइड, क्रिस्टल क्लियर. दीज आर द थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड. बट डू यू थिंक कि ये सब चीजें ऑन पेपर्स है बट प्रैक्टिकलिटी में फॉलो नहीं होती? चाहे एक एलिमनी लेनी हो, चाहे मेंटेनेंस लेनी हो, तो इट्स ऑल मनी गेम. Again, there are two sides to this question that you've posed. It is and it is not. The appellate courts, especially the High Court and the Supreme Court, they are actually looking into account and सब अच्छे से सोच समझ करके ही अब जजमेंट्स पास करते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है that women are actually misusing the law. अच्छा आरज़ू, लेट्स टॉक अबाउट 498A, जिसे हम लीगल वेपन भी टर्म करते हैं. सो क्या लगता है आपको कि जेन्युइन केसेस का रेशो और फेक केसेस का रेशो क्या है? मोस्टली आजकल सारे इन्फ्लेटेड चीजें ही चल रही हैं. Women, like I previously said, they are misusing the law that is meant to protect them. Also, misusing the word feminism. Indeed, most definitely. But again, being a woman, we have to say like that. It feels a little sad also. Yeah. But then nothing can be done. People are misusing, people are misusing. What we can do as the officer of the court, as the citizen, is that we should be able to provide justice. We should be able to help in providing justice, is rather a better statement to give. Yeah. अगर हम किसी को हेल्प कर पाए जहां पे वो फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन में आई थिंक हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं. एंड आई फील कि एज एन एडवोकेट ऑल्सो इस प्रोफेशन के अंदर जब हम अपने बार काउंसिल का कार्ड होल्ड करते हैं तो शायद हम एक इंटरनली एक ऐसी चीज की ओथ ले लेते हैं कि आवर क्लाइंट इज आवर क्लाइंट, राइट? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर वी नीड टू सी कि जरूरी नहीं है कि इफ वी बिलोंग टू द फीमेल सेक्टर तो हम किसी मेल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब हमें पता है कि उसके साथ एक फेक एलिगेशन, फेक फॉल्स एक्यूजेशन हो रहा है, या फेक फेमिनिज्म प्ले अप हो रहा है. सो आई थिंक ये चीजें हम लोगों के अंदर विद द ब्लड ऑफ एडवोकेसी आना चाहिए. आता है. एथिक्स इज व्हाट वी प्राइमरीली मैटर्स द मोस्ट. या तो एक क्वेश्चन और इसका मतलब एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो क्या मैं पूछूं, अब जब आप शादियों में जाते हो तो सगन के साथ दूल्हा दुल्हन को क्या एडवाइस देते हो? दैट एक दूसरे के रहना, बी अ वन मैन वुमन and one woman man. कार्ड तो नहीं दे के आते ना अपना? Definitely not. Why would I give that? कि ठीक है अभी के लिए सगन ले लो, रेस्ट यू नो वेयर टू कॉल मी. No, definitely not. But I think lot of people आजकल ये जो चीजें चल रही है फेमिनिज्म की चीजें,
being a woman, talking, you correctly said that it's very sad we being on the same gender side speaking about this thing. आजकल किसी ने बेटा बचाओ नहीं किया है ना, मैंने बेटी बचाओ कर रखा है, तो मुझे पता है उस टाइम पे जब मैं खुद केसेस को देख रही थी तब तो एक्चुअल काफी रियल केसेस थे भी, बट काफी ऐसे थे जिसके अंदर आदमियों के हक के लिए कुछ था नहीं. आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें ठीक हो जाए. Let's hope for that. Okay, so let's come to another section. So do you think that justice comes with a cost in our country? I don't think so. Honestly, I don't. मेरा ये मानना है in the almost a decade that I've spent in the profession that अगर आपके पास केस में मेरिट्स हैं तो चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक अगर वो नहीं सुना, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जरूर सुनते हैं. अगर जेन्युइनली आप कहीं पे एग्रीव्ड हो, कहीं पे भी कुछ कंसर्न आ रहा है, आप सही से सारी चीजें प्रेजेंट करो, जरूर जस्टिस मिलता है. देयर इज अ रीजन पीपल से दैट आई विल सी यू इन कोर्ट बिकॉज पीपल ऑल्सो बिलीव इन द जस्टिस वाला सिस्टम. चाहे लेट आए पर आता है. बट जरूर आता है. अच्छा, तो ओवर 5 करोड़ केसेस इंडिया में पेंडिंग है, कोर्ट्स उसके लिए कर क्या रहे हैं? आई वुड से कोर्ट्स मीडिएशन को बहुत एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं. अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ड्राइव लॉन्च करी थी जिसमें जुलाई के मंथ में इन्होंने सारे केसेस अक्रॉस द कंट्री सीधा बोला कि जो जो मीडिएशन में रेफर हो सकते हैं खत्म करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए आगे बढ़ाया जाए. अब फिर वो आगे सब सारे मैटर्स आए, मनी रिकवरी मैटर्स, बैंक के जो डीआरटी वाले मैटर्स हैं और मैट्रिमोनियल मैटर्स. प्राइमरीली मैट्रिमोनियल के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है मीडिएशन के अंदर. कमर्शियल मीडिएशंस भी होती हैं, बट जितने भी मीडिएशन के थ्रू मैटर्स रिजॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट ने एक टेक और भी दे रखा है कि उस केस में कोर्ट फीस सारी वापस चली जाती है. अब जैसे सिविल लिटिगेशन मैटर्स हैं उसमें तकरीबन 1% ऑफ द डिस्प्यूट वैल्यू की कोर्ट फीस जाती है. ओके. तो मान लो कि 1 करोड़ का अगर केस फाइल किया है, मनी रिकवरी केस है, 1 करोड़ के ऊपर तकरीबन 1% विच कम्स टू 1 लाख एंड इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अच्छा. कहीं पे 0.75% है, कहीं पे 0.80% है, कहीं पे 1.25% है, कहीं पे 1.5% है. तो तकरीबन 1% के आसपास जितनी भी कोर्ट फीस है, अगर पूरा मैटर आपका मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व हो गया एंड कोर्ट को अपना कीमती समय नहीं लगाना पड़ा, तो उस केस के अंदर कोर्ट फीस पूरी वापस हो जाती है. सो दिस इज अ मेजर स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, जो स्टेट जुडिशरी ने लिया है टू प्रमोट मीडिएशन एज अ वे ऑफ क्लोजिंग दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स. ओके, सो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ, नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन बट समथिंग रिलेटेड टू यू. अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कल को कुछ ऐसा उनके साथ कोई क्राइम हो जाता है, सो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट? आई वुड टेल देम टू ट्रस्ट द सिस्टम, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम सिस्टम पे ट्रस्ट ही नहीं करते. आई अंडरस्टैंड इट कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रिंग्स अटैच्ड. बहुत सारी चीजें हे वायर होने के चांसेस होते हैं, बट अगेन इफ यू आर डिलिजेंटली देयर, यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो डेफिनेटली ट्रस्ट द सिस्टम. It's very important that you trust the system. You present things in a proper way. You go to the court. The courts also understand कहाँ पे किसकी क्या गलती है, क्या नहीं है. There is a reason they are called judges. They are actually neutral and unbiased in a lot of cases. हाँ, negativity always persists. हर सिचुएशन में रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है. इसी तरीके से अगर आप सिस्टम पे बिलीव करोगे, वो लॉ ही इसीलिए बनाया गया है कि आप प्रोटेक्टेड फील कर सको. कॉन्स्टिट्यूशन ने ही वो आपको राइट दिया है. तो जब आप लॉ पे ही बिलीव नहीं करोगे तो लॉ कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा? बट इट्स ऑलवेज सेड कि मीडिएशन में तो कभी कभी महीनों और सालों भी लग जाते हैं. व्हाट आर योर टेक्स ऑन दैट? अब मीडिएशन है क्या? दैट यू आर सिटिंग अक्रॉस एंड टॉकिंग. और बात किसकी करोगे? जो लड़ाई है, जो झगड़ा है,
जो डिस्प्यूट है। अब जब आप डिस्प्यूट की बात करोगे तो घंटों, हफ्तों, महीनों तो लगेंगे ना, अगर आपको उसको सॉल्व करना है। जितनी भी पार्टीज आती हैं मीडिएशन के लिए, पहले पहले तो मीडिएटर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे हैव टू एक्ट इन अ न्यूट्रल एंड अनबायस्ड वे। किसी की साइड नहीं लेनी, कोई पक्षपात नहीं करना, क्योंकि द मोमेंट यू टेक साइड्स, दैट इज द मोमेंट योर न्यूट्रलिटी इज गॉन। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से स्मूथली जाएं। अब स्मूथली जाने के लिए अब पार्टीज तो बिल्कुल ही गुस्से से भरी हुई आएंगी, वो आकर के एक दूसरे के ऊपर गालियां भी देंगी, गुस्सा भी करेंगी। तो इन सिचुएशन के अंदर आप कैसे वो इंश्योर कर सकते हो कि टाइमली सब कुछ हो? जब इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, आप किसी को बोल नहीं सकते कि बस 1 घंटे का टाइम है आपके पास, 1 घंटे के अंदर आप क्लोज कर लो। एग्जैक्टली। तो आपको पूरा शांति से बैठ करके उन्हें समझना पड़ेगा, उनके लेवल पर उतरना पड़ेगा, तभी आप उस कॉन्वर्सेशन को ड्राइव कर पाओगे, क्योंकि मीडिएटर हैज टू फैसिलिटेट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पार्टीज। बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसे आपने जो केसेस देखे? सो गुड एंड बैड बोथ इन मीडिएशन ऑफ कोर्स। अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं। एक मैटर के अंदर वेरी रिसेंटली मैंने, आई विल नॉट नेम द फैक्ट्स ऑफ कोर्स इन डिटेल, parties filthy rich people, they want to part ways, they have a specially abled child, ओके। अब अलग होना है, लेकिन अगेन पैसे के ऊपर चीजें अटक गई अलग होने के लिए। The wife was asking for 10 crores in the form of alimony, and the husband was saying that I'll merely be giving you 3 crores. अब ह्यूज जोन गैप। ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट में ये लोग नहीं आ रहे थे, विच वी टॉक अबाउट इन अ मीडिएशन। अब इनको ऑब्वियसली, अब जब नहीं आ रहे, यू ऑब्वियसली एक्सप्लोर द अदर ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस हैं, कैसे यू कैन फैसिलिटेट द कॉन्वर्सेशन। इफ नथिंग वर्क्स देन ऑब्वियसली यू विल फेल द मीडिएशन। एग्जैक्टली। So I failed the mediation, and thereafter these people, they were like filled with rage because the emotions at that point of time were very high. बाहर निकलते ही उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। इनसाइड द कोर्ट? No, so this was inside the police station. लिफ्ट Okay. के एरिया के अंदर they are raising hands on each other. वो सिचुएशन जब मैंने सुनी, मुझे भी वहीं पे बुलाया गया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी दैट लड़की हाथ उठा रही है अपने पति के ऊपर जस्ट बिकॉज वो 10 करोड़ नहीं दे रहा। सो नथिंग कैन बी डन इन दिस सिचुएशन। इमोशंस बहुत हाई है, मीडिएशन फेल है। इसीलिए काफी टाइम लग जाता है आई थिंक केसेस को इंडिया में सॉल्व आउट करने के लिए, या टू कम टू अ कंक्लूजन। अब कोर्ट में भी जाएंगे तो भी तो टाइम लगेगा ना। कोर्ट में भी ये तो है नहीं कि वहां एकदम से जल्दी हो जाएगा। कोर्ट विल ऑल्सो बी गिविंग यू टाइम टू फाइल अ रिप्लाई, आर्ग्यूमेंट्स विल बी हर्ड एट लेंथ, देन द मैटर विल बी आउटवेड, किसके कहाँ पे क्या कंसर्न है, सारी चीजें कंसर्न्स प्रॉपरली ली जाते हैं। डू यू थिंक कि मेंटल हेल्थ इन सब चीजों से, जितने भी केसेस आपने डील करे हैं, कुछ इज इट समहाउ रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ ऑफ ईदर ऑफ द टू पार्टीज? बहुत जरूरी है कि हम सबकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। अब कंसर्न क्या आ रहा है, लोग इजीली किसी के भी ऊपर हाथ उठाना, ऊंची आवाज में बात करना बहुत नॉर्मल आम बात समझते हैं। आम बात नहीं है, सबके मौलिक अधिकार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको भी उतने ही अधिकार दिए हैं जितने आपको दिए हैं। आप ऐसे ही नहीं बात कर सकते। Even though you are tempted to talk like that, this is not how you should be talking. इन चीजों के ऊपर अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए किस तरीके से कैसे बात करनी है। बेसिक सी चीज है, बट नहीं पता, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। एग्जैक्टली। और काफी क्राइम्स इस इसी वजह चीज से से हो रहे हैं। यही रीजन है, क्योंकि अगेन लोगों के अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर टू पुट इट, तो क्राइम्स की तरफ को जा रहे हैं। वर्क प्लेस पे हरासमेंट्स हो रही हैं, एम्प्लॉयज को फोर्स किया जा रहा है टू क्विट देयर जॉब्स। बेसिक बेसिक चीजें, बट देन अगेन नोबडी टॉक्स अबाउट इट।
That's what I think. It's very important to discuss Right. this. It is. It is. And all the criminal cases also, I think, even it's leading to that path. It is. Family related matters, employees related matters. काफी जगह पे ये चीजें hit कर रही हैं. Ego clashes, no? Yeah, correct word for That that. exactly is the reason. Everybody wants कि उनके उनकी bosses ego satisfied हो जाए. एग्जैक्टली उनकी ईगो सेटिस्फाइड हो, उनके बॉसेस, उनके स्पाउसेस, उनके अराउंड हर कोई जो भी है सब बिल्कुल परफेक्ट रहें, एक अच्छा परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट चीजें हो. बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड. हम्म. चीजों को एड्रेस करना आना चाहिए. हम्म. ऐसे नहीं दैट यू कैन टेक लॉ इन योर हैंड्स एंड कमिट क्राइम्स एंड देयर आफ्टर यू गो टू द लॉयर एंड से कि भाई हमने तो कर दिया, अब आप संभाल लो. Now you handle. हाँ. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. हाँ. दैट्स द Correct. मेजर थिंग. Indeed. अब आपसे बात करते करते मुझे एक केस याद आया. चेक बाउंस का मैटर था. छोटा सा ही था, लेकिन हस्बैंड हैड लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड और वाइफ पीछे अकेली रह गई थी. शी वाज टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स. बहुत परेशान. थिंग्स वर नॉट लाइटिंग गोइंग वेल फॉर हर एंड उनके बेटे ने भी सुसाइड कमिट कर लिया था. अब हुआ क्या, इसी सब के चलते चलते शी गॉट टू ट्रॉमेटाइज्ड, as a result of which she ended up taking more money. क्योंकि अब जो लिटिगेशन चल रही है, घर के खर्चे मैनेज करने हैं, सारी चीजें ऑन गोइंग है, शी नीड्स टू मैनेज ऑल ऑफ दैट. अब केसेस पे केसेस, केसेस पे केसेस, केसेस पे केसेस चलते रहे. हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, अनडाउटेडली उसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन न्याय मिलता जरूर है. बट क्या इस सिचुएशन के अंदर उन्हें न्याय मिला? मैं नहीं कहूंगी कि मिला. बिकॉज ऑब्वियसली जो इंसान बहुत सारी चीजों से गुजर रहा है, एट द एंड वो फ्रस्ट्रेट होकर के ही बोल देता है कि मुझे नहीं चाहिए न्याय. इफ इट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई मेंटल हेल्थ, आई डू नॉट वॉन्ट इट. Can we say this that जितना डिले हो जाता है उतनी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है. इंडीड. बिकॉज लाइक यू सेड कि उनके हस्बैंड भी नहीं थे, उनका बेटा भी नहीं था, सो मे बी शी लेफ्ट herself into that kind of a situation. She was alone. So कितना mental health disturb हुआ होगा. Of course, everything was ruined for her. The child left. She was left with nothing in her. Is this case still on? Yes, it's ongoing. Okay. Hopefully she's okay now. Doing better from what I have recently heard about. हमने बड़ी सारी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज और ये सारी चीजें देखी हैं. यूट्यूब में कितनी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं. सो आई फील समटाइम्स जैसे कौन सा वो प्रोग्राम था, आई थिंक द जस्टिस वाला, जस्टिस पंकज त्रिपाठी का, राइट. सो द फर्स्ट एपिसोड, द फर्स्ट सीजन जो था उसका, इट सेड एक टैक्सी ड्राइवर होता है जिसने मर्डर की, आई थिंक उसके ऊपर आ जाता है कि उसने मर्डर किया है. सो जब तक उसका केस चलता रहता है, टुवर्ड्स द एंड उसकी साइकोलॉजी ऐसी होती है, वो सीधा साधा लड़का होता है, यू नो, उसने कुछ अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया, ही इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड एंड यू नो, गलती से वो मर्डर का केस उस पर चढ़ जाता है बिकॉज ऑफ अ गर्ल. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जेल में रहते रहते उसकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत अलग हो जाती है. पूरा जेल का इन्वायरमेंट उसमें दिखाया है. Even he has to face some sexual harassments and you know things like that. So I mean, whenever you must have gone to the jails counseling those people, what do you feel? सबसे पहले तो इन सिचुएशंस के अंदर जो मेजर रोल होता है वो ये होता है कि वो एक्यूज जो हैं अपने आप को संभालें. क्योंकि एकदम आउटसेट हो जाता है, माइंड एकदम ऑफ हो जाता है, नहीं समझ आता भाई क्या करें क्या ना करें. आई थिंक वो मोमेंट ही बिल्कुल मोमेंट अलग आउट हो होता है. गई एकदम. या ऐसे तो एकदम आप नहीं फंक्शन कर पाओगे. उस सिचुएशन में लॉयर आपके आकर के काउंसलिंग करेगा, वो लॉयर्स के पास ही टाइम नहीं है, वो कब आपके आके काउंसलिंग करेंगे. what is the correct time जब आपको पता चलता है कि now you've got the case and this is the time you have to go?
कि अब बात करनी है उस अक्यूज से या विक्टिम से। द मोमेंट वकालतनामा इज साइंड, और अगर हम इन मैटर्स की बात करें जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की, अब जैसे आपने मेंशन किया, जब उनकी फैमिली में से या कोई हमें अप्रोच करता है एंड दे गिव अ गो अहेड कि आप जाइए, आप बातचीत करके आइए, क्योंकि आप बातचीत नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस मैटर की आप मेंशन कर रहे हो, क्रिमिनल जस्टिस, आई थिंक उस हाँ, सीरीज क्रिमिनल का नाम जस्टिस। था विक्रांत मैसी, यस, ही राइट वाज अ टैक्सी ड्राइवर राइट एंड राइट हाँ हाँ राइट। हाँ, तो वही उनकी सीजन था। वो उन्होंने बिल्कुल बहुत एक्चुअली में वही चीज पोर्ट्रे करी है जैसे होता है जेल के अंदर, हम्म। हाउ दे आर गोइंग थ्रू एवरीथिंग, कहाँ वो हर चीज के लिए स्ट्रगल होता है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, जेल की एक अलग ही दुनिया होती है। उनके लिए एक बहुत रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, ऐसा मेरा मानना है। उनको अच्छी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए, बट देन अगेन हमारा सिस्टम ने ये चीज तो बोल दी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट आर दे एक्चुअली बीइंग ट्रीटेड एज इनोसेंट? नो, दे आर नॉट। बिकॉज आप उनको क्रिमिनल की तरह जेल में ही रख रहे हो, बिल्कुल उन क्रिमिनल्स के साथ रख रहे हो। अभी तक तो एक तरीके से देखा जाए प्रूफ तो नहीं हुआ ना, बिल्कुल। राइट? जब तक वो प्रूफ नहीं हुआ, आई थिंक सालों साल लग रहे हैं, बिकॉज और हमेशा यही कहा जाता है कि इंडिया के केसेस तो सालों साल चलते हैं। सालों साल भी चलते हैं, नॉट टू मेंशन उस सालों साल के अंदर उनका कितनी दुर्दशा हो जाती है। दैट्स व्हाट। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि सही चीज सही तरीके से सब इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट अच्छे से टाइम से जाए, बट क्या हो रहा है? ये सब कुछ नहीं हो पुलिस रहा। कैसे ट्रीट करती है इन सब चीजों को? नॉट गुड। पुलिस का इन्फ्लुएंस रहता है। बहुत ज्यादा। अभी आजकल, अब जैसे बहुत ही ज्यादा आपने सुना होगा, हनी ट्रैप भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। हम्म। क्या है ये हनी ट्रैप? कुछ भी, मतलब द गाय एंड द गर्ल दे आर गोइंग फॉर अ डेट, वहां लड़की आकर के शील फॉल्सली अक्यूज द गाय ऑफ अ रेप। एक सेकेंड, डेट पे? डेट पे, जो दे तुम्हारी गो डेट फॉर अ है। डेट, हाँ एवरीथिंग विल गो स्मूथली, हाँ। बढ़िया जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे। उसके बाद दे गो इनटू अ रूम, पैसे एक्सटॉर्ट कर लेंगे, एंड देयर आफ्टर फॉल्सली एक्यूजेशन ऑफ द रेप। लड़का हैड गॉन फॉर अ डेट थिंकिंग गुड फेथ में ही जा रहा हूँ, डेटिंग एप्स के थ्रू मिले, दे हैड गॉन फॉर अ डेट, एंड उसके बाद जी आ रहा है हनी ट्रैप का मामला सामने। और जाओ डेट पे। सो क्या है ये मेजर बात है। कंसर्न्स, आजकल सोसाइटी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इसीलिए लोग एक दूसरे से डरते रहते हैं, है बहुत ना? ज्यादा। So I think let's wrap up this session. Thank you, ma'am. It was a pleasure. Same here. And it was such a lovely meeting you, getting some good insights and helpful insights from you. Thank you guys for watching this episode. Hope to see you very soon.